Dr. Aditya Kumar, who has made the entire nation proud by securing rank 545 in the UPSC Civil Services Examination 2024. His story isn't just about books or exams, it's about dreams, discipline, dedication, and divine obstacles. I, Ritik Raj, the host of this podcast, welcome you, sir, on the behalf of entire Divine family, and we thank you for giving up your precious time for this podcast. Sir, the journey of becoming a successful surgeon to a UPSC aspirant, how are you feeling right now? Hello everyone. So I am from UOMI. I started my journey from Gorakhpur, and that school laid the foundation in me that I have today. So I will give you an anecdote. When I was in 9th standard, so we had three teachers. So first one will examine the paper and check the paper and they will give me 37 out of 40. Then second teacher will check it, he will reduce some more marks. Third will check, she will even check it more rigorously. And ultimately I will get around 23 out of 40. So that is the way I was prepped, that was the strictness that was imposed on me. And that in a way became a challenge for me that yes, I have to do better. So that particular incident that I'm telling you, this is the foundation that I got from Divine Public School, Gorakhpur, and the teachers provided me. And remember one thing, that if your foundation is strong, you can build any length of building on top of it. So being a doctor, then being a civil servant right now, it was that foundation that made for my future journey and even further ahead. So your family is sitting right down here. What would you like to express something today to your family? Some words. I mean, family is the support pillar of anybody's life, and for me, it was my support pillar. So whenever I felt let down, or especially when switching from an orthopedic surgeon, a successful one, I was working in AIMS Delhi, led to a UPSC civil servant where success rate is less than 1%. So keep that in mind. It is around 0.08% problem. Like out of 12 lakh people, only 1,000 get selected. So it is that difficult to get into it. So family as a support pillar was always there. And whenever I felt that why did I even come there? Because it's a very tough journey when you prepare for civils. So my mother, they were always there like me. So yeah, you can do it. You have done so much, and this is also I exam and you can just clear it. And that is why I'm very grateful to them. Talking about your school life, what kind of student were you in school? Like backbenchers, we think of toppers, backbenchers, middle benchers. What type of student you were in the school? I was good in studies, and I was very, what do you say, I was very mischievous sort of. So that's a backbencher. Yeah. So I had qualities of both. I was very, I used to play a lot. I was very quite interested in sports. And so, as you say, I had a mix of everything. Teachers used to love me, and since I was good in studies, so my mistakes or whatever mistakes I used to do, so they were like happy getting there. We talked about sports. So what does the extracurricular activity role play in our life? As a doctor, I am saying that a healthy mind lives in a healthy body. So, if you are physically fit, you will be able to study more, focus more, so and develop habits rather than going for a bout of activities. Inculcate habits in you that you can do it daily on a regular basis. Like for example, anything like you can go for a morning walk, you can eat good food, like avoid soda beverages, especially this time. So these habits they help you perform better in other aspects of life as well, whether it is studies, whether when you are giving exams, so you can continue to work for 2 to 3 hours continuously. So these things matter a lot. Sorry to interrupt for 1 minute only. Kindly be bilingual so that the students can get it. Main motive is for the students only. That is the reason I gave it. हमने हैबिट का बात किया. So after school life कोई हैबिट जो आप अभी तक
है from the starting birth से मतलब आपको जो हैबिट स्कूल लाइफ में लगेगी लाइक हमारे यहाँ हॉस्टल में हम रहते हैं हमारे यहाँ के 5 बजे उठ जाना बच्चों की हैबिट है 5 बजे उठ जाना योगा वगैरह करना मेडिटेशन करना आपकी कोई हैबिट है जो कुछ टाइम से आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हो इसलिए स्कूल सुबह 7 बजे से स्टार्ट होता था 7:20 टाइमिंग था तो इवन टुडे आई स्टिल वेक अप अर्ली एंड वहां से जो हैबिट लगी सुबह उठ के पढ़ने की आई स्टिल डू दैट अभी तक वही चल रहा है सेकंड वाज पंक्चुअलिटी जो मैंने स्कूल से सीखा था तो इफ आई हैव टू कम हियर बाय 10 आई वाज देयर बाय 10 तो एक चीज वो याद रखना है कि अगर आप पंक्चुअल हैं डिसिप्लिन हैं या स्कूल से सीखते हैं उसको हर जगह पे अगर आप खेलने भी जा रहे हैं आप कुछ बाहर भी काम करने जा रहे हैं उसको जरूर करिएगा ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जाके लाइफ में एंड डिसिप्लिन से ही सक्सेस आता है आप डिसिप्लिन है पढ़ाई में आप डिसिप्लिन है स्पोर्ट्स में तभी आपको आगे जाके वो सक्सेस में कन्वर्ट होता है सर आप डॉक्टर बने फिर आपको ऐसा क्या चेंज क्या शिफ्ट करने का मन क्या देश शिफ्ट करने का मन क्या मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगा व्हाट वाज द रीजन ये सेम क्वेश्चन मेरे से एनुअल में पूछा गया था कि लाइक यू आर सच अ सक्सेसफुल स्टूडेंट तो आप इधर क्यों आ रहे हो यू कुड हैव सर्विस वेयर आल्सो मेरे इंसिडेंट था कि जब मैं कोविड में ड्यूटी करता था तो मेरे अंडर अराउंड 40 टू 45 पेशेंट्स होते थे एंड उस टाइम पे जो डीएमपी वहाँ की नॉर्मल चली गई तो उनसे इंटरेक्ट होने का थोड़ा मौका मिला तो वहाँ पे आई रियलाइज कि यहाँ मैं 40 टू 45 पेशेंट्स को देख रहा हूँ हैंडल कर रहा हूँ और यहाँ पे सेम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 40 टू 45 लैक उस लेवल पे उस बच्चा बच्चे बूढ़े औरतें उसके अलग अलग डिमांड्स हैं किसी को स्कूल चाहिए किसी को खाने का चाहिए हॉस्पिटल चाहिए तो वो वहां से मुझे रियलाइजेशन हुआ कि अगर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं इससे भी बड़ा कुछ कर सकता हूँ तो वो था सिविल सर्विसेज मुझे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा एंड दैट इज व्हाई जब मेरा 2022 में पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ इधर आकर मैंने सर्टिफिकेट ज्वाइन करी एंड देन स्टार्टेड प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज क्या करें फॉर प्रीलिम्स मेंस आपके स्ट्रेटजीज क्या क्योंकि आप कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो आईएएस आईपीएस के एग्जाम देना चाहते होंगे आगे जाके तो व्हाट इज स्ट्रेटजी पहला तो जो भी एग्जाम आप देने जाओगे चाहे कोई भी हो आईआईटी देने जाओ या सीएमटी देने जाओ नीट देने जाओगे जैसे सक्सेस के लिए उसका सिलेबस एक बार जरूर पढ़ लेना 90 to 99% लोग को सिलेबस नहीं पता होता है कि जिस एग्जाम का देने जा रहे हैं और इसे सक्सेस एग्जाम में भी ट्रू ये सच बात है तो वो ऑलरेडी एग्जाम आपको ऑलरेडी सिलेबस दे देता है कि मैं यहीं से सवाल पूछूंगा ये मेरी बुक्स हैं जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस बुक से वो पूछ रहे हैं तो वो डेली एनसीईआरटी आप केस बना के पढ़िएगा तो प्री के लिए मेरा एग्जाम सिलेबस था डिफाइंड था उस सिलेबस को मुझे पढ़ना था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करने उसके बाद जब इतना आप कर लीजिएगा देन आपको आगे बढ़ना है मेंस के लिए अभी स्टेज चल रहा है कि आपको सिलेबस में कीवर्ड दिए हुए तो आपको वो आना ही आना है एंड देन इंटरव्यू में तो आपकी पूरी लाइफ पूछी जाएगी तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना होगा कभी से आप हैबिट डाल लो पेपर पढ़ने का और डिसिप्लिन लेके आओ लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप डेवलप करो ताकि जब इतने लोगों के सामने आपको बात करना पड़े तो आप कर पाओ any funny moment कुछ वहाँ पे वो इंटरव्यू करते हैं कोई funny moment कोई funny क्वेश्चन आपको पूछा गया हो पानी मैं नहीं बोलूँगा थोड़ा सीरियस तौर पे डिस्कस कर रहा था बट एक था कि अवेयरनेस बेस्ड क्वेश्चन है तो उन्होंने पूछा कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट का आप क्या करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में तो मैं ये बताऊंगा कि जैसे आप सिवान से हैं आपको पता होना चाहिए कि आपके जिले में मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है ये एग्रीरियन इकोनॉमी है मेनली यहाँ पे लोग खेती में करते हैं तो जब आप ऐसे आंसर देंगे सिंस माय डिस्ट्रिक्ट मोस्टली एग्रीरियन इकोनॉमी तो उस हिसाब से अगर आप आंसर देंगे कि हाँ मैं यहाँ पे सिंचाई के लिए करूँगा नहर वगैरह कैनाल वगैरह करवाएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल करवाएंगे सीड अवेलेबल करवाएंगे ताकि किसानों को दिक्कत ना हो तो वो आपको ये बताता है कि आप अपने जो सराउंडिंग है आप जहाँ से आते हैं स्पेशली आपको पता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं आपके रूट्स क्या है तो आई थिंक वो मेरे हेल्प किया कि मैं वो बैकग्राउंड करता हूँ तो जैसे पढ़ाई की बात करें कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते हैं सिलेबस से रिलेटेड ही पढ़ते हैं कंटेंट से रिलेटेड पढ़ते हैं पर स्कोर नहीं कर पाते
तो आप उनको क्या स्ट्रेटेजी बताएंगे? व्हाट वाज योर रीडिंग हैबिट? आप कैसे पढ़ते थे, क्या करते थे, आप लिख के याद करते थे, याद करते थे? व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी इन दैट टाइम? मेरा एक स्ट्रैटेजी ये था कि जिस दिन भी टेस्ट दो, सबसे पहला एग्जाम्पल होता है कि आपको एग्जाम देने हैं, टेस्ट देने हैं। जैसे कि अगर आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप आगे बढ़िएगा तो आपको कैसे देना है, प्लस आप यहाँ पे एग्जाम देते हो तो आपको शीट मिलती होगी आंसर शीट देखने के लिए कि आपने क्या क्या गलतियां करी हैं। तो उन गलतियों को नोट डाउन करो पहले कि ये मेरा टॉपिक, मुझे नंबर कम मिले, इसमें क्यों कम मिले, या आप उस तरह से ठीक है। देन उससे आपको एक्स्ट्रा काम करना है। मैं क्या करता था कि कॉपी में मैं मार्क कर देता था कि ये टॉपिक मेरा वीक है, इसमें नंबर कर रहे हैं। जैसे आप मैथ्स जब आप सॉल्व करते हो तो कुछ टॉपिक होते हैं जहाँ पर डिफिकल्टी होगी, तो आप हाईलाइट कर लीजिए, जब आप रिवाइज करने जाएंगे तो उस पर ज्यादा फोकस रहेगा, अदर देन सब पे फोकस करने हैं। तो जो आपको आता है उस पर कम फोकस, जो नहीं आता गलती हो उस पर ज्यादा फोकस। और एक बार याद रखना कि किसी भी चीज को एटलीस्ट 5 से 6 बार पढ़ना होगा, मिनिमम रिवीजन करना होगा और सब स्टडी करनी है। समझ रहे हो आप? ये नहीं कि आप स्कूल में पढ़ा है, घर पे अपनी पढ़ोगे और फिर कहोगे कि टीचर पढ़ा दीजिए, वैसा नहीं करना होता। पहले आपको जो स्कूल में पढ़ाया गया है आप उसको घर पे जाकर रिवाइज कीजिए, फिर वापस हमारे स्कूल में एक होता था डिवाइन गोरखपुर में एक बहुत अच्छा होता था इन्वेस्टमेंट पीरियड को, लास्ट स्कूल के 45 मिनट होते थे। तो हमें हम क्या करते थे वहां पे उस टाइम पे होमवर्क कंप्लीट कर दिया और अगर कोई डाउट होता था तो उसी टाइम हम टीचर से जाकर पूछ लेते थे। तो वो एक बहुत अच्छा आपको स्कूल के टाइम में मिलेगा, आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज कीजिए, रादर देन बार बार करने से उसका होमवर्क कंप्लीट कीजिए और टीचर से डाउट पूछिए। सर स्टूडेंट्स आज के टाइम में स्कूल आते हैं, फिर ट्यूशन भी करते हैं कुछ बच्चे, तो इस तरीके से वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या टिप्स होगा टाइम मैनेजमेंट को लेकर? पहले मेरा ये बोलूंगा कि आप रादर देन गोइंग फॉर ट्यूशन, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कोशिश करो कि आप क्लास में अटेंटिव रहो, तो आपका 40-50% काम क्लास में हो जाएगा। फिर कुछ करने का वो वहीं पर खत्म हो जाता है अगर आप अटेंटिव नहीं थे क्लास में। फिर क्लास में टीचर्स को आप डाउट पूछिए, मतलब आप बहुत देखते हो कि बहुत कम बच्चे क्लास में क्वेश्चन ही पूछते हैं, तो एक हैबिट अपने आप अंडर डेवलप कीजिए क्यूरियोसिटी का, क्यों कि ऐसा क्यों है, दैट व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये डेवलप करेंगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि जब आप कुछ डाउट होते हैं तो आपको उस टाइम पे नहीं पता होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो डाउट और आपको पता चलता है कि हाँ ये भी नहीं आता था। एंड वो एक्चुअली आई थिंक वो जो विनर्स होते हैं उसमें ये होता है क्यूरियोसिटी। लाइक शिव खेड़ा का एक लाइन है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू देम थिंग्स डिफरेंटली, एंड दैट इज व्हाट आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो आपको बनाता है। सर आपने वाई के बारे में बात किया, द वर्ड वाई, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दैट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है द वाई। आपके जिंदगी में वो वाई शब्द का मोटिव क्या था? वाई एज अ पर्सनालिटी में मैं बहुत क्यूरियोसिटी शुरू से ही, तो फिर मैं टीचर को बहुत तंग करता था, वो भी टीचर को ही चाहती थी कि इसका आंसर बताओ। तो फिर वहीं से धीरे धीरे फिर वो जो वाई होते थे डाउट होते जाते थे। अगर एग्जाम देने जाओगे तो वो होते हैं सेम सिविल सर्विसेज में भी आपको है, जब आप इतने लाइव मिस होगे ना तो आपके डाउट will भी सर्कल बन के फिर आप पॉइंट नंबर 5 आ जाओगे। तो और वो और जब आप सिविल सर्विसेज में जाइएगा तो वहां पे आप जस्ट जाके जैसे याद करके एग्जाम नहीं दे सकते हैं, या आईआईटी का एग्जाम देंगे या फिर नीट का देंगे, वहां पे आपको याद करके आप नहीं कर सकते, आगे अपने साथ चीजों को समझते नहीं हो। तो इस वाई से आप चीजों को समझो, और ये वाई आप अपने लाइफ में भी कर सकते हो कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या फायदा है, देन चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। एक सवाल मेरा भी है कि आप लोगों को हमें भी पता है कि जो कमीशन है हर साल बढ़ रहा है, और कमीशन केवल मात्रात्मक ही नहीं गुणात्मक भी हो रही है, और साथ में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आपको मोबाइल कई बच्चे पेरेंट्स को जिद करके मोबाइल देते हैं, टाइम बर्बाद कर रहा है, ठीक है,
तो जो कंपटीशन बढ़ रहा है और ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो उसके बीच में संतुलन कैसे लाना है? सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा भी आपके लिए, जैसे टेक्नोलॉजी को बोलते हैं कि इधर इट कैन बी यूज फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस और डिस्ट्रक्टिव पर्पस, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे यूज करना है। जैसे मैं दो यूज करता था, यूट्यूब और एक ट्विटर, और जब भी एग्जाम पास आता था तो मैं ट्विटर को अनफॉलो कर देता था, और यूट्यूब पे मैं अगर कोई भी टॉपिक जिसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो उसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे सोर्स से आप वहां से उसको यूज कर सकते हैं। सेम आप चैट जीपीटी है, एआई है, आपको यूज कर सकते हैं अपने आप को ऐड ऑन करने के लिए। लेकिन कभी भी जो बेसिक नॉलेज है जो आपके क्लास नोट्स है उसके ऊपर उसको ऐड ऑन करना है। सेकंड, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं तो आपको जब भी आप पढ़ने बैठते हैं 2-3 घंटे आप पढ़ रहे हो तो फोन को बंद करके साइड रखो, एटलीस्ट ताकि वो उतने टाइम आपको डिस्टर्ब ना करे और आप पढ़ाई कर रहे हैं। घर पे अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो घर पे बोल दीजिए कि ये मेरा टाइम पढ़ने का है, इस टाइम पे अगर उनको बस बता दो क्या पढ़ने जा रहे हैं ताकि घर वाले भी परेशान ना हो, फोन बंद है, ठीक है। और ये जो 2-3 हैबिट्स है वही ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में अंतर लाता है। और इसीलिए आप एग्जाम कितना भी टफ हो जाए, जो लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, जो इस चीजों को रेगुलरली फॉलो करते हैं, चाहे छोटी छोटी आदतें होती हैं, ये फिर आपको आगे ले जाते हैं। और ये सक्सेसफुल लोग आप जिससे भी बात कर रहे हो ये सब ये करते हैं, और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप हर जगह अप्लाई करोगे आपको सब पहले जरूर। अच्छा, एक चीज और एक सवाल हुआ कि जैसे बच्चे आजकल परीक्षाओं को लेकर तनाव में आ जाते हैं, तो आपने इस सारे परीक्षाएं दी, इतना सारा इकट्ठा नहीं किया, इस तरह आपको क्या कभी तनाव हुआ? अगर ये बच्चे तनाव में आ जाए, कभी आ जाए तो उनको क्या करना चाहिए कि वो तनाव दूर हो? जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि बच्चे पढ़ते हैं लेकिन टेस्ट नहीं देते, क्योंकि अल्टीमेटली सबको खुद से डर लगता है, सबको अपनी वास्तविकता पता होती है कि हाँ हमें कितने पानी में हो। तो पहला तनाव का है रिलीज करने का है कि देखिए आप टेस्ट दो, टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपको क्या नहीं आता है, एंड देन उस पर काम करो। रादर देन स्ट्रेस लेने से अच्छा है कि उस चैलेंज को आप फेस करो। एक बार आप चैलेंज फेस कर लोगे, आपको अपनी कमी पता चल जाएगी, देन उस पर काम करो। और जैसे आप बोलते हैं कि 0 से 80% में आना है रिलेटिवली इजी, 80 से 90 जाना इज वेरी डिफिकल्ट, और ऐसे ही फिर आप ऊपर आएंगे। और यही से स्ट्रेस रिलीज होता है जब आप छोटे छोटे गोल्स रखेंगे कि हाँ ये मेरी कमजोरी थी, तो ये लावा है, इसको मैंने ठीक कर दिया, आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाओगे और नेक्स्ट फिगर जाएगा। तो इस तरीके से करके ये मेरा तरीका था कि पहले मैं अपनी कमी को खुद से जानूं क्या है मेरे अंदर कमी, और वो शीशा देखना सबसे डिफिकल्ट होता है, आप उसको करिए, हो जाएगा, हो जाता है। सर 3 शब्द है, फेलियर, फियर, सेल्फ डाउट। ये तो आगे तो सर ने पूछ लिया, बाकी तो सब क्या डिस्क्राइब कर दिए, फेलियर, सेल्फ डाउट। व्हाट इज द रोल ऑफ फेलियर? फेलियर क्या होगा आपके लाइफ में, क्या होगा? मैं बताऊं कि फेलियर आपको सिखाता है एक्चुअली। जैसे मैंने अभी यूपीएससी जब एग्जाम था तो मैंने यूपीएससी का भी दिया था, बट नहीं कुछ क्वालिफाइड ट्रेनिंग, मैंने अपने आप से पूछा कि क्यों नहीं हुआ, तो फिर आई वेंट बैक क्यों मैंने एग्जाम दिया। मेरा ये था कि जब इंटरव्यू होगा तो मेरे से बिहार रिलेटेड पूछा जाएगा सवाल, बिहार स्टेट से रिलेटेड, तो मेरा मोटो ये था कि मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करूं ताकि एक बार मैं पूरा बिहार स्टेट, सिवान, सब कुछ के बारे में पढ़ लूं। तो मैं वही बोलूंगा कि फेलियर आपको सिखाता है कि ये कमी है आपके अंदर, इसको आप ठीक कीजिए, और जो कर लेता है वो आगे निकल जाता है, और जो नहीं करता है फिर वो वहीं पे उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। सेल्फ डाउट, सेल्फ डाउट फिर वहीं से आता है जब आप बार बार फेल हो गए ना, जब आप बार बार इम्प्रूव नहीं करेंगे, कि गलती बार बार आप नहीं करेंगे, आपको पता है कि ये मेरे मैथ का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो जब एग्जाम देने जाओगे तो जैसे क्वेश्चन देखोगे आपको अपने अंदर डाउट आ जाएगा कि ये मेरे से नहीं होगा, भाई बिकॉज आपने उसके ऊपर काम ही नहीं किया है। तो सबसे बेस्ट चीज होता है अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके, जो आपको फेलियर बताएंगे यू आर गेटिंग दिस थिंग रॉन्ग, और जब आपकी कॉपी चेक होगा आपके पास आती है तो टीचर स्पेसिफिकली मार्क करते हैं, और रिमाइंड कर दो मैं तो कुछ उसका वो एग्जांपल लूं मल्टीपल तो बस आप उन गलतियों को सुधारिए, वो ठीक हो जाता है, सब हो जाता है। सो यहाँ पे जो बच्चे हम बिहार से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे स्मॉलर टाउन्स, स्मॉल हाउसेस, उन बच्चों को इंस्पायर कैसे करेंगे टू गिव दिस एग्जामिनेशन? आप क्या टिप्स देना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको क्या क्या करना है? पहले तो
इस टाइम पे तो आपके पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट है 5G का, डिजिटल जो टेक आ चुके हैं, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। हमारे टाइम पे तो बहुत थोड़े काम तो उतने पे डेवलप हो रहे हैं, उतने हो रहे नहीं। तो इंफॉर्मेशन इज नॉट इजीली एक्सेसिबल, सबके पास है, आपके मोबाइल में है। आपको बस उसको पढ़ना है, आपको उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज करना है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि आपको अगर अच्छी अच्छा एजुकेशन के लिए आपको बड़े शहर में जाना चाहिए। और ये इंस्टीट्यूशन एक प्राइम एग्जाम्पल है कि आपके शहर में इस क्वालिटी का आपको एजुकेशन मिल रहा है। मतलब मैं तो एक एग्जांपल हूं, आई हैव टू माइग्रेट टू गोरखपुर टू गेट गुड क्वालिटी एजुकेशन। तो ये आपके लिए इस टाइम पे बहुत क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया चीज हुई है कि आप घर में बैठे भी पढ़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, और आपके पास इंस्टीट्यूशन आपके पास है, आपके सिटी में है कि आपको कहीं भी बाहर जाके माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा। तो स्मॉल सिटीज में सपने बड़े होते हैं, और अब इनके थ्रू आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पर सपनों को पूरा करना है। अब मैं एक एग्जाम्पल हूँ कि मैंने डॉक्टर भी बना, तो सपने अचीव होते हैं, बस उसको मेहनत करनी पड़ती है, छोटी हो या बड़ी, गुजरनी सबकी एक्टिविटी हो जाती है। सर हमारे साथ अभी क्लास 10 और क्लास 12 और तो कॉलेज के स्टूडेंट्स से बैठे हुए हैं। व्हाट इफ यू वुड विश देम राइट नाउ, बिकॉज़ 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम में बोर्ड्स का रिजल्ट देखा, वी हैड वेरी ग्रेट रिजल्ट्स फॉर आवर, बट व्हाट मोर वुड यू लाइक टू ऐड, उनका क्या ऐड करना चाहेंगे ताकि इनका रिजल्ट और इम्प्रूव हो सके? क्या ये टाइम स्टडी फॉलो करेगा, शेड्यूल फॉलो करेगा, ये सब चीजें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है परसिवरेंस। लाइक आपको अगर आपको आपने एक टारगेट सेट किया है, तो दिन हो रात हो, गर्मी हो बरसात हो, अगर आपको डेली 5 या 6 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भले आप खाना मत खाओ, आप कम सो, लेकिन आपको अगर आपने टारगेट सेट किया है मुझे ये करना है तो करना है। दैट इज व्हाट सबको अलग करती है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो होली दिवाली में घर में नहीं आता था, या आपको कोई नहीं आता था, बिकॉज सैक्रिफाइसेस है, वो सैक्रिफाइस आपको करने पड़ेंगे, और वहां पे आपका अपनी जो फैमिली सपोर्ट है वो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो कितने भी आगे बढ़ जाओ, अपनी फैमिली को मत भूलना, वो आपका सपोर्ट मिल रहा है। और फैमिली आपको हमेशा जमीन पे रखेगी, आपके माता पिता भाई बहन की ये ज्यादा मतलब जमीन पे रखो। तो मेरे घर में तो बोला जाता है कि तुम ऑफिसर हो के बाहर घर में वही रहो। एक क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन ये है कि बिहार स्टेट में या पूर्वांचल स्टेट में इट इज द मिथ ओनली अक्रॉस होल स्टूडेंट, जितने बच्चे हैं उनके बीच में ये मिथ बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है कि कोचिंग के बिना सक्सेस अचीवेबल नहीं है, ठीक है, या टारगेट्स अचीवेबल नहीं है। क्या ये कितनी हद तक सही है, क्या ये सही है, क्या नहीं सही है, क्या करना चाहिए? एक रोल होता है कि वो एक डायरेक्शन दे देते हैं, मतलब उसका एक होता है डायरेक्टेड होता है, लेकिन अब आपके स्कूल ही इतने डेवलप हो चुके हैं कि आप वही आपको डायरेक्ट कर देंगे हर चीज के लिए। जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, सेम चीज कोचिंग करवाते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई सेलेक्ट हुआ तो वो बुला लेते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। लेकिन कोचिंग का रोल अगर स्कूल से ही आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए, जैसे मैंने ऐसा कोई कोचिंग वगैरह स्कूल में रहा तो जरूरत नहीं पड़ेगी। Why? Because स्कूल ही इतना सफिशिएंट था कि कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। और सेकंड चीज है कि अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, कोचिंग के सहारे भी रहेंगे, अगर आप कोचिंग कर भी लीजिए, लेकिन अगर आप खुद से घर पर जाके नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, क्या 12th में रहिए या कॉलेज लेवल पे भी करेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे नहीं सीखेंगे। अगर आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो आपको खुद से अपनी कमियां नहीं पता चलेगी। कोचिंग की आपको स्टूडेंट करा देंगे, ठीक है, तो उस चीज का आप ध्यान रखना कि कोचिंग इज नॉट एवरीथिंग। एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद से पढ़ना है, चाहे आप कोई भी एग्जाम निकालने जाइए, आपको एटलीस्ट अगर आप सिविल्स में जाएंगे या फिर आप पीएचडी या आईआईटी में जाएंगे, आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। तो अगर फिर वेस्टिंग टाइम बाय डूइंग द कोचिंग, आप घर में रहो, डाउट पढ़ो और पढ़ो आराम से, सेल्फ स्टडी को आराम से। थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन और जो कि यहीं से कनेक्टेड है, क्वेश्चन है आपसे कि सर आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी बुक्स का कितना अहम रोल रहा? मैं आपको नीट एग्जाम के साथ मैंने क्लियर किया हुआ है और यूपीएससी माइक सीधा कर ले तो आवाज पीछे। हेलो,
नीट एग्जाम में मैंने क्लियर किया था और मेरे टाइम पे एएपीएमटी होता था, मैं लास्ट बैच में था, और यूपीएससी में दोनों में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से आते हैं। तो प्लीज आप डिसाइड मत होना कि बाकी इधर उधर की बुक आप नीट देने जाओगे, वो सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। अंत में 12th में होंगे जीन के नाम का क्वेश्चन आता है कि जीन के में बुलेट बोल्ड एक्शन डलवाए का पढ़ना होता है, वो वर्ड एनसीईआरटी की लाइन में लिखी हुई है, आपको किसी रेफरेंस बुक में नहीं मिलेगा। तो और एनसीईआरटी की बुक बहुत छोटी सी है, आप अगर उसको जब मैं एग्जाम देने गया था एएपीएमटी का, तो मैंने इसको 15 से 16 बार पढ़ा था, पूरी बुक लाइन बाय लाइन कवर बाय कवर। इतना इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू क्रैक दैट एग्जाम इन फर्स्ट मोमेंट, बिकॉज़ मैं आई क्लियर्ड। कौन सी क्लास से एनसीईआरटी बुक पढ़नी चाहिए? जितना अर्ली हो सके उतना बेटर है, बट जब आप एग्जाम के लिए जाएंगे तो 9, 10, 11, 12 क्योंकि रेगुलरली हम सुनते हैं कि 6 स्टैंडर्ड से डेफिनेटली एनसीईआरटी का एक लाइन आप बिल्कुल बाइबल की तरह है या गीता के समान है, उसका एक लाइन क्लियर होना चाहिए। ये कितना सही है? क्लास 6 से एनसीईआरटी आपको एक बेस बना देती है कि आपसे क्या पूछा जाएगा, एंड स्पेशली ये अगर आप जो नीट एग्जाम में और सिविल एग्जाम में, इन दोनों के लिए 100% करेक्ट है। आज जब हम प्रिपरेशन के लिए भी जब मैं गया था तो मुझे ये बोला था कि आप क्लास 6 स्टैंडर्ड से स्टार्ट करो पढ़ना, हिस्ट्री ये पॉलिटी हिस्ट्री की बुक होती है। मेक श्योर कि आप 6 स्टैंडर्ड से आप जब भी 6 स्टैंडर्ड में जा रहे हो स्टार्ट रीडिंग दोस बुक्स। बहुत छोटी बुक्स हैं, कोई बहुत बड़ी बुक नहीं होती है वो, बट वो याद रखना कि जब भी आप फ्यूचर में जाओगे और बुक्स को रखना, किसी को देना मत, वो आपको आगे काम आएंगे। तो और सारे क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, आप यूपीएससी भी जाएंगे देने तो क्वेश्चन वहीं से आते हैं, और यूपीएससी लोगों के मन में इट्स अ वेरी टफ एग्जाम, टफ नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने करके दिखाया है, तो आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं। रीजन भी आपको अपने जो सोर्सेस हैं या बुक्स हैं उनको सीमित रखना है, जैसे मैं आपने बताया एनसीईआरटी को, मैं तो ये बोलूंगा एनसीईआरटी को कैसे सीमित रखना और ज्यादा भटकना नहीं। और समस्या यही आती है कि बच्चे इतना भटकने लगते हैं कि जब आप रिवीजन करने जाओ एग्जाम के टाइम पर तो फिर कंसोलिडेशन हो नहीं पाता, रिवीजन भी नहीं हो पाता, फिर करेक्ट नहीं आता। अगर भटकने के बाद बात किया लक्षण लिखना और है कि बच्चे आजकल लिखने से भाग रहे हैं, लिखना नहीं चाह रहे हैं। तो जो सिविल सेवा परीक्षा है या अन्य परीक्षाएं हैं उसमें लिखना उस चीजें कितनी जरूरी है, बच्चों को लिखना और कितना लिखना चाहिए और फिर प्रयास करना चाहिए, इसके बारे में सिविल में जो सेकंड पेपर है, सेकंड एग्जाम है मेंस में आपको सिर्फ लिखना है और वहां पे आपको एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस आपको 3 घंटे के अंदर सॉल्व करना, लिखना है। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग अभी से अच्छी है वो आपको +5 मार्क्स दिलाएगी, +5 में आईएएस आईपीएस सीटिंग जा रहा है कि आप क्या बनेंगे अपने लाइफ में, इतना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए अभी से आप लिखावट पे ध्यान देंगे, जितना आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे वो आपको फ्यूचर में आप कॉलेज भी जाएंगे, चाहे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे वहाँ पे लिखना होता है, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे वहाँ पे भी लिखना है। तो लिखने से मत आओ, उसको अपना दोस्त बना लो, उससे हैंडराइटिंग अच्छी होगी। और जैसे अगर आप मेडिकल प्रैक्टिस में हो तो मेरी राइटिंग अच्छी थी तो पेशेंट भी बहुत आते थे, सर आपकी राइटिंग पढ़ लेते थे और दवाई नहीं कर रही थी अपनी, तो इतना ज्यादा आपके प्रभाव पड़ेगा लिखावट से और आपको लिखने की हैबिट से। सर आपने बात किया स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं, मेरे को लगता है स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो डिस्ट्रैक्शन और सबसे बड़ा वर्ड जो मैं बोलूंगा डिप्रेशन में जो आजकल जा रही है। ये रीजन आप डॉक्टर से ना बैठे आपका तो देखना है रोज सर हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना आजकल थोड़ा बहुत भी अगर ये डिसैटिस्फाइड अपने आप से वो उस स्टेट में चले जाते हैं कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं डिप्रेशन से चला जाऊंगा। एक्चुअली वो टर्म जो है ना इनको एक्चुअली हम ब्रीफ में से बताया नहीं है वो एक्चुअली स्टेट होता क्या है, कुड यू प्लीज डिस्क्राइब दैट स्टेट? बेसिकली नॉर्मल टर्म डिप्रेशन इज अ स्टेट ऑफ लो, मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं। बट और ये इस टाइम पे स्पेशली ड्यू टू सोशल मीडिया लोग अपने आप को बहुत कंपेयर करते हैं और जो फिजिकल कनेक्ट है, बातचीत करना अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, अपने पेरेंट्स से स्पेशली, तो आप देखेंगे मैं भी घर में मोबाइल लिया और बैठ के होने में मैं आपको बाहर जाकर खेलना कूदना है, आपको वो करना है। तो बेटर ये कि डिप्रेशन को फाइट करने का एक तरीका है जो ट्रीटमेंट की वो है फिजिकल एक्टिविटी, कि आप जाओ अपने दोस्तों से बात करो, अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा तो उसके लिए बटन कर लो, आप दोस्त से पूछो उसको नहीं आएगा तो उसे थोड़ा एक मोटिवेट
मोटिवेशन मिलता है चलो जैसे यहाँ तक अकेला तो खुशी ऑटोमेटिकली होता है। It's commonly said हमको प्यार नहीं करते अपने जैसा जो प्यार हो गया। और फिर अगर आपको ज्यादा तनाव हो रहा है पेरेंट्स से बात कीजिए और पेरेंट्स काफी पढ़े लिखे होते हैं तो उनको बस पूछना कि उनको नहीं आता उनको बहुत कुछ आता है उन्होंने अपने बहुत लाइफ एक्सपीरियंस से आपको सिखाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं वही बोलूंगा कि अपनी वीकनेस पे काम करो कि आपकी क्या कमजोरी है उसको इम्प्रूव करो डिप्रेशन आए नहीं। I find the बच्चे को चांस मिलना चाहिए। Yes, sir. This is the last question for myself. Sir, last question. What does success mean to you right now? Spider-Man movie का एक quote है, with great powers, great responsibility. And I think as a doctor, मेरे हाथ में लोगों की जान होती थी, लाइफ होती थी, कि मेरे स्कैल्पल से किसी की जान बच सकती है या जा सकती है। अब वही चीज अभी बहुत डिफरेंट लेवल और डाइवर्स ग्रुप में हो चुकी है। यहाँ मैं बता रहे हैं कि 40 to 45 पेशेंट्स हैं, अब मेरे पास 40 to 45 लाख हैं। तो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैं वही कोशिश करूंगा कि जितना हो सके जितने अच्छे से मैं आंसर करते आया हूँ उस तरीके से वहाँ पर भी निर्माण करूँ। मैडम बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक आपके डॉक्टर है तो आजकल जो बच्चे हैं कॉमन मोबाइल पर नहीं यूज कर रहे हैं, उनकी शारीरिक एक्टिविटी खत्म हो गई, तो स्वास्थ्य का सफलता से कितना बड़ा संबंध है और सफल होने के लिए एक बढ़िया स्वास्थ्य का रहना, सेहत का बढ़िया रहना इतना जरूरी है, इसके समाज का ध्यान शुरू में बताया है कि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। तो आप फिजिकल एक्टिविटी को नेग्लेक्ट कभी मत करना। अगर आप हेल्दी हैं तो आपका दिमाग भी खुश रहता है। फिजिकली आप खुद को भी देखोगे शीशे में तो अच्छा लगता है कि हाँ आई एम लुकिंग गुड, ठीक है। और अगर आप मेंटली हैप्पी भी रहोगे, जब भी कोई स्ट्रेस आता है और आप फिजिकली फिट हो, बीमारी नहीं है। आजकल के जमाने में बता रहा हूँ बीइंग फिट एंड हेल्दी इज अ लग्जरी जिसको आप अप्रिशिएट अभी नहीं कर रहे हो। जब आप आओगे अपने 30s 40s में तब आपको समझ में आएगा कि हेल्दी होना कितना रादर देन हैविंग मनी बीइंग हेल्दी इज मोर इम्पोर्टेंट, बीइंग रिच इज मोर इम्पोर्टेंट, बीइंग हेल्दी इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग रिच। समझ रहे हो आप? और अगर मैं डॉक्टर बता रहा हूँ कि मेरे पास पेशेंट होते थे जो एटलीस्ट 10-12 मेडिसिन खाते थे, ठीक है। तो एक सजाव मसला है वही होगा कि आप rather than aiming for a 5-star hospital, aim for a 5-star hotel. Very good stay, enjoy your life. I actually rapid fire question, sorry. It's my personal. Okay. Tea or coffee? Coffee. Coffee. One word for school life. I was confused. And one word for UPSC. Practical. Thank you so much, sir. I would like to ask students to please ask the questions if they want to. Okay, we have a question. Hey. Good morning, sir. Sir, first of all, congratulations to you. Come forward. Good morning, sir. Sir, first of all, congratulations to you. So, my question to you is that, how did you manage the stress during your preparation? Because it might seem like giving up sometimes. And so, my second question is that I am in standard 10. So, my question to you is that, what was the percentage in class 10 and what was your timetable? So, I couldn't get it for the question. Sir, my question to you is that how did you manage your stress during your preparation? And it might sometimes seems like giving up. Actually, when I was board tech लिखा हुआ था, I always remember why I started, and it was difficult for it was a very difficult decision. ये orthopedic surgeon होके switch to a different sort of career, like uncharted territory जिसे बोलते हैं. So I wrote it on a board. Always remember why I started. तो अपने जब भी आप कुछ करने जा रहे हो, तो just write it down on your board. What was your reason to go on इस रास्ते पे आप चलना चाह रहे हो, तो आपने वो स्टार्ट ही करेंगे, क्यों चलना चालू किया था, उसको आप याद रखना. सेकंड, जब भी स्ट्रेस हो अपने दोस्तों से बात करो. जिस चीज को लेके आपको स्ट्रेस होगा, जरूरी होगा, वो भी जरूर होगा, वो स्ट्रेस हो जाता है, फिर वो स्ट्रेस बढ़ जाता है.
वो पढ़े होगा आपने प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स ऑफ एरिया होगा, तो उस एरिया को एक्सपेंड कर दो, फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। तनाव के जब आपको तनाव प्रबंधन लगाते थे तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? जैसे मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई काम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है वो काम मत करो। मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए। जैसे कलाम साहब ने कहा था कि सपना तो होता है जो आपको जगा के रखता है, सोने नहीं देता। तो एक मेरा जगह मुझे सिविल्स में जाना था, तो बस जाना था, उसके लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे सवेरे 5 बजे उठ के पढ़ाई करनी है तो करनी है। और सेकंड है कि जब भी स्ट्रेस होगा अपने दोस्तों से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने टीचर से बात करो, वो भी एक बहुत आपको एक अवेयरनेस देते हैं आपके स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। अल्टीमेटली जिस कारण स्ट्रेस हो रहा है वो कुछ भी हो सकता है, लाइफ में हो सकता है, पढ़ाई के चलते हो सकता है, आप उसमें काम करिए और स्मॉल स्मॉल गोल्स टाइम लेते हैं, बट वो ठीक हो जाता है। As a doctor, I'm telling you, sleep is very important if you want to study for longer hours. तो make sure कि आप जितना भी सोते हो 6 घंटे 7 घंटे वो एकदम कंप्लीट जरूर करो। एंड जब भी ये पढ़ते वक्त नींद आ रहा है, टेक अ नैप ऑफ 10 मिनट्स, दोबारा पढ़ने आ जाओ। कॉफी वगैरह इसका हैबिट मत डालना, इस चीज में मत डालना। आगे जब जरूरत पड़े, स्पेशली मैं भी कॉफी एग्जाम के टाइम ठीक करता है, एक बार एग्जाम होता है कॉफी की हैबिट करता है, उसके बाद नहीं होता। तो कभी भी स्लीप को मत छेड़ना। उसका रीजन दे देता हूँ, मेडिकल रीजन क्या होता है कि जब भी आप पढ़ते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जब आप सोते हैं तो वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज होता है, इसलिए स्लीप इतना इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं आपको मेडिकल रीजन दे रहा हूँ कि आप एटलीस्ट अपनी जो 6 से 7 घंटे आप सोते हो उसको अच्छे से सो। एंड पढ़ाई के टाइम में अगर कभी भी लगे तो पिक अप 5 to 10 minutes nap, then continue study। और पढ़ते टाइम हमेशा मोबाइल ना पढ़ें। I have a question. Just tell us the power of the subconscious mind. Could you please clarify? जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में चीज रहती है, ठीक है? एंड स्पेशली जब आप एक्सपीरियंस करने आ जाते हैं वहाँ पे आप एक्टिवली सोचते हैं तो उसका टाइम नहीं होता। तो जब आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है, जब आप आंसर लिखने बैठे हो ऑटोमेटिकली याद आने लगता है। एक अगर आप किसी भी एग्जाम में जाओ, जब आपको सवाल दिखता है ऑटोमेटिकली अगर आपने पढ़ा है आ जाएगा। तो इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को रेस्ट देना स्लीप से ही होता है। स्लीप प्रॉपर्ली रेस्ट हो जाता है एंड इट वर्क्स। गुड मॉर्निंग सर। सर आपने क्वेश्चन किए थे सर, आप बैकपेंचर पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं, तो सर आप जब भी अपने पार्ट में रहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज की होती है? क्लास 9 में मेरे को स्कूल क्लास मॉनिटर बनाया गया। उन्होंने बोला कि तुम मेरे को 50 बनाने के लिए गया था, क्या बस बट वो एक मेमोरी हमेशा मेमोरी ग्रुप में रहता है कि जो भी ज्यादा मिस्टेक करता है उसको लीडरशिप एक्टिविटी देता है, वो होती है उस चीज को हैंडल करे एंड वो ऑलरेडी उसमें अंदर वो डिसिप्लिन लेके आ जाता है। तो वो एक मेरा मेमोरी ग्रुप है कि पढ़ने का था बट वो उसको ढक देते हैं मिस्टेक। तो मैं क्या कहता हूँ आप मॉनिटर बनो, आप करो। तो अभी वो टीचर कोई ऐसे टीचर है ना जिनको आप आज तक याद करते हैं, आप आज तक बात करते हैं? There are multiple teachers in my life, so thank you. आवाज श्रीवास्तव की उनका आज भी बात होती है प्रेसिडेंट मैम की स्कूल प्रिंसिपल थी मीना आदमी मैम, तो उनका बहुत प्रभाव हमें में पड़ता है और उनके अपनी वो रेगुलर टेस्ट कराते हैं। हेलो, आप रिक्वेस्टिंग ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज रेज हैंड्स। So my question was
is that it is important to have a backup plan before going to UPSC examination? I think it's a very good question और सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि यूपीएससी बहुत टफ एग्जाम है और याद रखना कि सक्सेस इज लेस देन 1%. ये स्टैटिस्टिक्स एकदम याद रखना. दूसरा होता है कि जब आप उसका एग्जाम बाकी एग्जाम दोगे तो एक दिन में खत्म हो जाता है. यूपीएससी का एग्जाम 10 महीने चलता है. एग्जाम पहले 10 महीने की है. तो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो ये बहुत बड़ा मेंटल बूस्ट मिलता है आपको. जैसे मेरे पास था कि आई वाज लाइक चलो मैं डॉक्टर को नहीं होगा तो क्या होगा, ऑलरेडी आई एम सर्जन, तो वो एक मेंटल स्ट्रेस आपका हटा देता है. अगर आप जैसे अभी आप आईआईटी दोगे या नीट का एग्जाम दोगे, आप देते जाएंगे, नेक्स्ट ईयर यू क्वालिफाई और आप उसी एग्जाम देने जाओगे आगे फ्यूचर में जाके एसएससी करोगे, जिसका भी दो आप एग्जाम, एनडीए करोगे. अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करके यूनिवर्सिटी करने आ रहे हो, ऑलरेडी आप कॉन्फिडेंट हो क्योंकि आपने ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम क्रैक किया हुआ है, तो आपके मेंटल स्टेट को और बूस्ट अप करने का जो बाकी कैंडिडेट हैं, आप और एग्जाम को जैसे आपने क्रैक किया है तो आपका वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा. ठीक है, तो जब आप बोर्ड के सामने जाएंगे तो जो वर्क एक्सपीरियंस होता है ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है उनके ऊपर कि लड़के ने सिर्फ एग्जाम नहीं किया है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी है, काम किया है रियल लाइफ वर्ल्ड में. तो जब आपके पास वो एक्सपीरियंस होता है तो ऑब्वियसली बात है कि आप बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे. ठीक है, ये आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके फ्यूचर को शेप करेंगे. प्लान बी रखना जरूर से रखना. प्लान बी करके प्लान ए तैयार करें. मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने मेडिकल किया है तो आपने क्या टिप्स यूज किए हैं उसको नीट को क्रैक करने में, पर आप जब भी डिमोटिवेटेड थे आपने क्या किया है? मेडिकल में जैसे आपको पता है कि एनसीईआरटी, अरे मैं बोल रहा हूँ बायो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत वेट कैरी करता है जब आप एग्जाम देते हो. एनसीईआरटी को एटलीस्ट मेक श्योर यू रीड 9, 11, 12 की एनसीईआरटी एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स, दैट इज मिनिमम. आप नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको लगाओ, उससे आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर किस थीम से क्वेश्चन उठा रहा है. आप समझ जाओगे जब आपको पता चलेगा कि बायोटेक से बहुत सवाल आते हैं तो बायोटेक को जब वो कर लो कि आप बुक मार्क कर लो अपने बुक में क्योंकि ये बहुत फोकस करके पढ़ाई करनी है. सेम फॉर आईआईटी वालों कि आपको भी जो एनसीईआरटी में मैथ्स का क्वेश्चन है उस डाइवर्सिटी को आप आइडेंटिफाई करके रखना है एंड उसको प्रैक्टिस करना है. सेकंड स्ट्रेस कोई बताओ स्ट्रेस का कि अपनी कमी को खुद से निकालो. एग्जाम की मेरा ये टॉपिक नहीं है, मेरा ये थीम नहीं है, एंड उस पर काम करो, एक्स्ट्रा काम करो. जब आप रिवीजन करने जा रहे हो तो एक्स्ट्रा रिवीजन करो, उस पर ज़्यादा फोकस रखो. उसको स्टार्टिंग पढ़ना स्टार्ट करो उसके टॉपिक से. पहले उसको मैं खत्म करूँगा एंड देन आई विल गो टू ज़्यादा. आप क्या काम करते हो दिन भर का एक आप पता कर लो, फिर उस हिसाब से एक सबसे बेस्ट होता है सुबह का टाइम. सुबह का टाइम आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा. तो जब भी पढ़ना होता है तो आप 4 से 2 घंटे आप पढ़ लो. उस टाइम में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना आपको घर पे कोई आएगा ना आपको कोई काम करने के लिए बोलेगा. वो सबसे बेस्ट टाइम होता है पढ़ने का और उस टाइम सबसे ज़्यादा याद रखने की जरूरत होती है. तो आपको अपने शेड्यूल को सुबह के हिसाब से आप बना सकते हो. अगर आप रात को पढ़ते हो तो रात को उसकी एरिया में बहुत जल्दी होता है, 8 बजे सब होता है. तो आप अपना कुछ पढ़ाई करना नहीं है, आप इस काम कर सकते हैं. और आपको 5G आ गई है, हर जगह अवेलेबल है. इंफॉर्मेशन का पहले होता था कि इंफॉर्मेशन इज नॉट इजीली अवेलेबल इवन इन रूरल एरिया, तो वो भी खत्म हो गया है. तो आपके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है जैसे यूट्यूब हो गया या चैट जीपीटी हो गया. आप उसको यूज कीजिए अपने एडवांटेज के लिए. इंटरनेट भी आपकी क्राइटेरिया मैनेजमेंट से करा था, लाइक कौन सा अकाउंट में डाला जाता है जो वर्क को समझने के लिए तो उसको यूज करिए. तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, राइट नाउ इट इज वेरी अफोर्डेबल. सर आपने जो आईएलटीएस को सक्सेस लिया उसके लिए कितने देर तक आपने स्टडी करते हैं सर? रेगुलर बेसिस पे आपको एटलीस्ट 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं. रेगुलर जब आप रेगुलरली 5 से 6 घंटे पढ़ेंगे नेक्स्ट
इंश्योर कि वही परसिवियरेंस होता है, जो कीवर्ड होता है कि वो डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए कि आपको मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े। अगर मैंने सुबह 6 बजे उठ के पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है, वो आपकी शेड्यूल में हो जाना चाहिए। तो आई यूज्ड टू स्टडी, मतलब मैं 5 से 6 घंटे आगे नहीं की होती, वो स्टडी मोबाइल पर समझ पर वो फोकस पढ़ाई। जब एग्जाम पास में आता है तो आप ऑटोमेटिकली 12-16 घंटे स्विच कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आप पहुंच जाओ, उसमें आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर अभी तो आप डॉक्टर थे, उसके बाद मतलब अलग से स्टडी करते थे उसके लिए। यूपीएससी के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसका सिलेबस अलग है पूरा का पूरा। बस मुझे एक बार पता है कि मेरा ऑप्शनल मेडिकल साइंस रखा था मैंने, तो वो मेडिकल से रिलेटेड था, तो इजीली हो गया उसी के साथ में। तो सर आपके कैसे प्लान है स्टडी? तो सुबह तो आप कॉलेज पढ़ाते थे, उसके बाद मैंने ये डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ, मॉर्निंग शेड्यूल में रहता है, सुबह के पढ़ लिया, फिर जब जॉब होता था तो जॉब जैसे सीनियर रेजिडेंट ऑफ साइंस, तो हमारे पास सुपरविजन वाला लोग ज़्यादा होता है, तो वो करके फिर आप शाम को दोबारा 3-4 घंटे पढ़ लीजिए, ऐसे करके करना हो जाता है। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आपका ट्रिगर पॉइंट क्या था कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है? जैसे ये एनेक्डोट था जो मैंने आपको दिया है, एक और एनेक्डोट था जब कोविड फर्स्ट वेव खत्म हुई थी, तो मैं ओपीडी में बैठा था और एक पेशेंट है हमारे पास, और वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पेशेंट थी, मैं उनका ट्रीटमेंट कर रहा था। तो कोविड में 6 महीने का लॉकडाउन था शुरू में, उसके चलते वो दवाई नहीं ले पाती थी, तो मैंने कि बाहर घर से ले लेते कि हाथ टेढ़ा होने लगा, तो उनका रिस्पॉन्स ये था कि या तो मैं दवा ले सकती हूँ या मैं खाना खा सकती हूँ। तो वहाँ पर फिर आई रियलाइज कि एज अ डॉक्टर आई कैन ओनली प्रेस्क्राइब मेडिसिन, दे सकता हूँ, मेडिसिन अवेलेबल भी नहीं करवा सकता, और जो दूसरे चीजें हैं गरीबी के पानी हो गया, खाना हो गया, घर हो गया, वो एज अ डॉक्टर मैं नहीं कर सकता था, वो मेरी लिमिटेशन थी, वो इतना कि मुझे अपनी लिमिटेशन का आभार वहाँ पर हुआ। दैट इज व्हाई आई थिंक इफ आई हैव टू डू समथिंग बिग, मेडिसिन शुरू करके। गुड मॉर्निंग सर। आप स्टडी नहीं किया था, आप स्टडी लाइफ में सब्जेक्ट्स आए हैं, आपने उसको ओवरटेक कैसे किया? इसमें आपको अपनी कमजोरी पहले आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, जब आप पढ़ रहे हो सेम चीज बहुत सिंपल चीज होती है जो आपको करनी है, कुछ अलग से मैंने नहीं किया, वो आप ही कर सकते हो। आपको भी पता है कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं, आपको पता है, आप उस पर काम कीजिए, उस पर ज्यादा टाइम दीजिए, कुछ चीजों में आप बहुत अच्छे हो गए, कुछ चीजों में आप खराब हो गए, आपको पता है क्या कमजोर है। मेरा सिंपल तरीका है कि जो मेरी वीकनेस है उस पर काम करो, उसको मजबूत करो, ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाए, और डिप्रेशन या जो नहीं हो। Class 10 study after studying louder. Class 10 का आपने कैसे पढ़ाई करते थे? आपका ठीक है? दो बजे खत्म हो जाता था, मैं घर गया, खाना खाया, फिर सो जाता था, ठीक है, एक बार बोलो मैं आधे घंटे के लिए मेरा दिमाग खुल जाएगा। उसके बाद आई यूज्ड टू मेक श्योर कि कुछ भी हो, आई हैव टू स्टडी, जस्ट स्टडी फॉर 3 to 4 hours. I have to study at least 3 to 4 hours daily, मतलब मिनिमम था कि ये इतना कुछ भी हो जाए, घर में कोई फंक्शन हो, कोई घर पे आ जाए, इंटरनल टाइम मेरे को पढ़ना था, और दूसरा मैं क्या था सुबह उठ के पढ़ता था, तो फिर वही बोला कि फैमिली का सपोर्ट, तो मैं जब रहता था तो पापा हमेशा 4 बजे फोन कर देते थे, इधर उधर पढ़ाई करना है, जब जाते थे फिर पढ़ना था, तो उस टाइम से आपको मैनेज करना होगा चीजों को। Sir, my last question. What is your favorite song? Because we think that to beat ourselves, we hear songs. What is your favorite song? मूवी देखी उसमें का था कि जो टाइगर हिल को जाते करने के लिए लक्ष्य को पाना है, तो वो करेक्ट है कि जब भी मैं एग्जाम देने जाता हूँ तो डिस्कस, और मैंने उनको बहुत बात की दिखाता है कि कैसे डिस्ट्रैक्टेड यूथ एक यंग पर्सन होता है, अगर डिस्ट्रैक्टेड कोई मतलब नहीं, एंड देन ही गेट्स अ एम कि मेरे को टाइगर हिल पे जाना है, एंड he gets it done. So वो एक फेवरेट मूवी है,
बस एक लास्ट क्वेश्चन जो कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि आजकल एक पीयर ग्रुप को जो अपने बच्चों के साथी संगी हो रहा है, बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं, कई तरह दोस्त बनते हैं, और खूब अच्छे हो गए। तो पीयर ग्रुप लर्निंग होती है, अच्छे बच्चे मिले, अच्छा संगत मिला हो, कभी कभी गलत संगत से मिल जाता है। तो वो जो गलत संगत मिलते हैं उसके नकारात्मक प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो उससे बचने के लिए बच्चे क्या करें कि पीयर ग्रुप के नकारात्मक प्रभाव में जैसे आप शुरू में जब कॉलेज जाओगे तो आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा कि कौन अच्छा है कौन खराब है। एक चीज आप कर सकते हो कि अगर कोई भी आपका दोस्त बने उसकी जो हैबिट्स अपने पेरेंट्स को शेयर कर सकते हो। वो आपके बेसिस पे जज कर देंगे कि वो बता आपके लिए सही है कि गलत है। सेकंड, आप अपने ऊपर देखो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर एज ए इंडिविजुअल आप इम्प्रूव कर रहे हो और वो इम्प्रूवमेंट आपके हैबिट्स में होगा कि आपको बुरी हैबिट में नहीं पड़ रहे हो, इसलिए कॉलेज में होता है आपकी पढ़ाई आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये आप देखें कि तुम इंडिविजुअल के चलते अगर आपको लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और अगर कभी भी डिलेमा हो कि नहीं मुझे पता नहीं मुझे क्या वेदर वी विल डू द दैट, आज के पेरेंट्स आज के ब्रदर ऑलरेडी आपसे बड़े होंगे, इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। एंड पेरेंट्स विल गाइड यू, जो भी वो बात बोलते हैं उनके वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। ऐसा बता Dr. Aditya, sir, your journey from classroom to civil services has inspired all of us. You have proven that success isn't about shortcuts, it's about showing up every single day with purpose. For all of us who are listeners, let this story prompt us to dream big and work even harder. Thank you once again, Dr. Aditya Shaw, for becoming a leader of inspiration and sharing your story with us. Thank you so much. One last thing I would like to say, आप कभी भी कितने नीचे पोस्ट पे चले जाओ, सक्सेसफुल हो जाता है कुछ भी बन जाओ, बी हम्बल, बी काइंड, क्योंकि आपके पीछे बहुत लोग हैं जिनको नहीं मिली है। तो एरोगेंस अपने अंदर कभी मत आने देना, बी हम्बल, बी काइंड, एंड जो भी आपके पीछे रह गए हैं मेक श्योर कि आप उसको पकड़ के आगे लेके आओ। तो ये क्या आपको तो ऐसा काम आपको बहुत अच्छा अपने काम किया है। इलॉन मस्क ने कहा था कि if you feel motivation to do anything, don't do it.